हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनूप्स मेकिंग फिजिक्स इजी। ये वीडियो कल की कंटिन्यूशन में है और इसमें मैंने वेक्टर को बहुत समराइज कर दिया है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो कल रह गया था वो इसी वीडियो में ले लूँगा मैं आज। तो आज स्टार्टिंग करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर इन वेक्टर। दिस इज फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, नीट, जेई लाइक. So for first of all, you should always know the angle between the vectors. So for angle between the vectors, we need to join tail to tail or head to head to find the angle between two vectors. Like there are two vectors A and B, and the angle is theta. So here angle is theta between A and B because we join tail to tail. Tail of A and tail of B, and the angle is between these are theta, so the angle is theta between A and B. Second situation, if this is A, direction is this, and this is B, direction is this, so now head and tails are joined, but we have to join tail to tail. So what we will do, we just extend A vector here. Now this is the angle between A and B supposed to be. So here this angle would be, if this is theta, this angle would be 180 minus theta. So in this case angle is 180 minus theta between A and B. This is the very important point while determining the angle between two vectors, right? Now point number 2, addition of vector by head and tail method. Suppose this is the angle, this is the vector A, and this is vector B, this is vector C. So remember, these are in the joining head of last one and the tail of next one, head of last one, tail of next one. So resultant would be the tail of the first one and the head of the last one, and that too in the opposite direction. This is the direction of the vectors, so resultant would be in the opposite direction, like this. So if number 3, if R vector is equal to A vector plus B vector, then to find the magnitude, it is the vector quantity and it has magnitude and direction also. We will find both of these. So to find the magnitude, what we will do, R square is equal to A square plus B square, mod भी लिख सकते हैं यहाँ पे, plus 2AB cos theta, where theta is angle between, जो मैंने आपको पिछली भी पॉइंट में बताया था कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड व्हाट इज वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस. फॉर डायरेक्शन फॉर्मूला इज tan alpha. tan alpha is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Again, theta is the angle between A and B, and tan alpha is the angle between A and R. So R is making an angle alpha from A, right? यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो एंगल दिए, ये जो वेक्टर दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, एक प्लेन में है और एंगल बना रहे हैं, वो जो कि थीटा है. तो उनको ऐड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे हमेशा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, और उनके बीच एंगल, रिजल्टेंट का एंगल इस तरह से निकालेंगे, ठीक है. नाउ वी सी द सबसेक्शन ऑफ वेक्टर्स. लाइक इफ वी नीड टू फाइंड आउट R इज इक्वल टू A minus B, so we cannot do it directly. We have to put the plus formula, so we can write it like this. Now we
subtract a from a to b, and this is the resultant. Now r mod square is equal to a square plus b square plus minus 2ab cos theta. Theta is angle between a and b, right? So this is the formula for minus a minus b, right? Now you have to remember, मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं किसी भी एग्जाम के लिए वेक्टर्स में, बहुत ही शॉर्ट रूप में। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो वेक्टर के न्यूमेरिकल्स में काम में आती है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ये जो आपको याद रखनी है ये नोट कर लीजिए आप। 6 पॉइंट, इफ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड of r? So always r magnitude is always less than or equal to magnitude of a plus magnitude of b का mod, and it is always greater than a minus b magnitude इसका mod. This is the range of the resultant of a and vector b magnitude, right? 7th point is resolution of a single vector quantity. Suppose this is x-axis and this is y-axis, and this is the vector A making angle theta from x-axis. So it has two components. Here it is a sin theta, a cos theta, and y component a sin theta. यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है, जो थीटा एंगल है वो एक्स एक्सिस से है, तो जो वाली एक्सिस के पास है ये थीटा, उस पर ये आएगा cos थीटा, a cos थीटा इसका कंपोनेंट, और जिस एक्सिस से ये दूर है इस पे ये a sin थीटा आएगा। और इसमें एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना हो, कहीं भी किसी प्लेन में अगर ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें, इफ इट इज a एंड दिस इज थीटा, तो अलोंग द थीटा यहां पर ये इसका कंपोनेंट होगा a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। फर्स्ट कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन, यहां पर होगा a sin थीटा इसका कंपोनेंट, राइट? और अगर मोड a निकालना है तुम्हें तो इज इक्वल टू अंडर रूट दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट का स्क्वायर, a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। ना यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं हम। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द वेक्टर होता है। तो इफ कोई वेक्टर ए है तो वो एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं हमेशा, जिसको कि हमने मान लिया ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वेयर ए क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन एज डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड आपको। मैं भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, केवल कंसेप्ट और फॉर्मूले जो आपको जरूरत है रहेगी इस वेक्टर फॉर्मूले में, वेक्टर चैप्टर में, वो सारे आपको रिवाइज करा रहा हूँ। केवल फॉर्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल्स आपको खुद कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। ये वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर होता है आई जेड एक्सिस के अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो 1 यूनिट एंड डायरेक्शन इज इन द एक्स एक्सिस, दिस इज आई कैप। 1 यूनिट डायरेक्शन इज वाई एक्सिस इज जे कैप। 1 यूनिट डायरेक्शन इज जेड एक्सिस इज के कैप। तो इनको अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो इसका आई डॉट आई क्या होगा? आई मॉड्यूलस ऑफ आई cos theta. So I dot I would be 1. This is 1, this is 1, cos theta is 0. I dot I अपने आप से तो 0 का एंगल बनाएगा, तो I dot I is 1. Similarly J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1 and I dot J is equal to I dot J. This angle is theta which is 90. So cos 90 is 0, so it becomes 0. J dot K is equal to 0. K dot I is equal to 0. I dot K is equal to 0. Like this. So this is the orthogonal unit vector. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। 10th तक कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अभी जो हमने वेक्टर की बात कर रहे थे वो इस तरह बात कर रहे थे, कहीं भी दो वेक्टर हैं ए और बी और इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमने निकाल दिया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में उनके कोफिशिएंट। सो लाइक दिस, इफ एफ is equal to एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है वेक्टर को लिखने की। इसमें ये वाला नहीं लेते, इसमें ये लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां से वो कितना है, कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना दूर है और जेड एक्सिस से कितना दूर है। नाउ वी डू द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, लाइक देयर आर 3 वेक्टर्स हियर। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देयर इज a vector A which makes angle theta from here, angle at vector B which makes angle alpha, sorry beta, and this is vector C which makes angle from x axis gamma. इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेजोल्यूशन एक्स एक्सिस पे कितना हुआ, ए cos थीटा लिख लिया हमने। इसका रेजोल्यूशन वाई एक्सिस पे क्या होगा, ए साइन थीटा। अब इसका रेजोल्यूशन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, सी cos गामा, और इसका रेजोल्यूशन वाई एक्सिस पे कितना होगा, सी साइन गामा। इसका रेजोल्यूशन बी वेक्टर का वाई एक्सिस पे हो जाएगा बी साइन बीटा, एंड एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, बी कॉस बीटा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आर एक्स प्लस आर वाई, दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, आर एक्स और आर वाई। हियर आर एक्स इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ए एक्स मतलब ए का एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, ये है ए कॉस थीटा कंपोनेंट। सो ए कॉस थीटा प्लस बी एक्स इज
बी साइन बीटा प्लस बी साइन बीटा एंड सी एक्स इज सी कॉस गामा। पर यहां पर बी कॉस बीटा, जहां पर ये बी कॉस बीटा आएगा जो कि नेगेटिव में है, एक्स एक्सिस से इधर की तरफ है, ओरिजिन से, इसके इसलिए हम यहां पे लिखेंगे माइनस। में आपको लिख के बता देता हूं, आर एक्स वुड बी ए एक्स इज ए कॉस थीटा, बी एक्स माइनस बी कॉस बीटा एंड सी एक्स इज अगेन प्लस सी कॉस गामा। सिमिलरली आर वाई पर कंपोनेंट देखने हैं वो हमें, तो ए का कंपोनेंट वाई पर ए साइन थीटा प्लस बी का कंपोनेंट वाई पर बी साइन बीटा, सी का कंपोनेंट नीचे है तो इसको माइनस सी साइन गामा। ये आ जाएगा आर एक्स और ये आर वाई। नाउ आर इज इक्वल टू, जो भी आर एक्स आता है, आर एक्स एक्सिस में उसकी डायरेक्शन है, तो इसलिए आर आई ये डायरेक्शन बताएगा, ये आर वाई की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ये जी बताएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंपोनेंट्स देखने हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म लग रहा है इसमें रिजल्टेंट तो आपको आ गया, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन सपोज ये है आर की, ये एंगल गामा है, देन टेन अल्फा है, टेन अल्फा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। एक ही फॉर्मूला। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन हो गया, मोड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और रिप्रेजेंटेशन ही हो गया। ये तीनों चीजें हो गई इसमें। तो ये 11th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इन वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट। सपोज देयर इज अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड देयर प्रोडक्ट इज सी विच इज स्केलर, ऑलवेज स्केलर इन डॉट प्रोडक्ट। तो सी की कोई नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसको निकालेंगे कैसे? ए डॉट बी को, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ए बी कॉस थीटा। इसकी रिजल्टेंट की नो डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इसमें डॉट प्रोडक्ट में। और सिमिलरली आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूं आपको, ये है जब दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया है। अगर इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंगल तो इससे निकाल ही लोगे आप, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर चाहिए तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, कॉस थीटा आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म ए डॉट बी अगर इस तरह से वेक्टर दिए हैं तब तो ये होगा ए डॉट बी, और कार्टेशियन फॉर्म में दिए, कार्टेशियन फॉर्म मतलब सपोज 3i प्लस 2j माइनस k, a इज दिस एंड b इज दिस, 2i प्लस 1 प्लस j प्लस k, b इज दिस। तो हम क्या करेंगे a डॉट b निकालने के लिए, दिस इज ax, दिस इज ay एंड कोफिशिएंट ऑफ k इज az, एंड दिस इज bx, कोफिशिएंट ऑफ j इज by एंड दिस इज bz। तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, और क्योंकि इसकी कोई a डॉट b हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं होगी
तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं. नाउ कम टू क्रॉस प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. इट रिप्रेजेंट विद द क्रॉस, सो इट कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. इसमें रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. ए क्रॉस बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए बी साइन थीटा. थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन द ए एंड बी. बट दिस इज नॉट कंप्लीट. वाई? बिकॉज आई सेड ए एंड बी जब क्रॉस करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उनका वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. सो हियर वी हैव टू गिव द डायरेक्शन एन कैप. नाउ दिस इज फुल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. वेयर एन की जो डायरेक्शन होती है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. दिस इज ऑलवेज द डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज perpendicular to A and perpendicular to B, and n is the unit vector whose direction is perpendicular to A and perpendicular to B. Suppose this is A vector and this is B vector and this is theta. So A cross B की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, आइदर ऊपर और नीचे. ये दो प्लेन है, सपोज ये प्लेन में वेक्टर है तो डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी. ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना. इससे भी 90 डिग्री बनाना है और इससे भी 90 डिग्री बनाना है. तो ये जो है 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज एन कैप. जिसमें कि डायरेक्शन इसकी हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी. ए डॉट में ध्यान रखना, ए डॉट और बी डॉट में तो डायरेक्शन ही नहीं होती थी, केवल मैग्नीट्यूड होता था, नो डायरेक्शन. पर यहां पर क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए हमने एन कैप लगाया, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी होती है. ठीक है. नाउ क्रॉस 14th. नाउ क्रॉस of orthogonal unit vector. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो वही होते हैं एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन है. इसका आई कैप मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, जे कैप माइनस मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन वाई एक्सिस, के कैप डायरेक्शन जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड 1. तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? सॉरी, आई क्रॉस आई. आई क्रॉस आई क्या होगा बताओ? आई वेक्टर आई साइन थीटा और डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर है इसकी, इनटू परपेंडिकुलर क्या है? डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये थीटा आई से आई, थीटा इज 0 तो दिट बिकम 0. सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0. आई डॉट आई क्या होता था? 1 होता था, और जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1 होता था. लेकिन क्रॉस करेंगे तो ये 0 हो जाते हैं क्योंकि क्रॉस वाले में फॉर्मूला साइन थीटा का लगता है. मैग्नीट्यूड है लेकिन ये 0 वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, इनकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है. 0 मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन कोई सी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है. लेकिन यदि हम इफ वी प्रोडक्ट आई डॉट जे, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक रूल समझ लो, आई जे और के. इफ आई मल्टीप्लाइड बाई जे क्रॉस आई क्रॉस जे, आई अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप. एंड सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे.
अब हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू, तब माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ये हमें ध्यान में रखना है हमेशा। उसके लिए ये इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्लॉकवाइज जाएगा तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स थर्ड, फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स थर्ड, फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स थर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स माइनस थर्ड, फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स माइनस थर्ड, फर्स्ट क्रॉस सेकंड गिव्स माइनस थर्ड, लाइक दिस. So this is all about the cross product of non-orthogonal unit vector. Cross product of orthogonal unit vector. अब हम अभी हमने पढ़ा था a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा n. ये जब हमें दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कोई बात नहीं होती. लेकिन अगर वेक्टर्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म, तब ये क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज ए एक्स आई प्लस बी एक्स बी वाई जे प्लस सी जेड के. Sorry, this is AY and this is AZ. And vector B is equal to BXI plus BYJ plus BZK. This is in the Cartesian form where we introduce I, J and K. These are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. तब इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इजी तरीका है, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, यहाँ पर ए एक्स ए बी ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप, फिर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इन बी वेक्टर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसके थ्रू x क्रॉस b क्रॉस इज इक्वल टू व्हाट वुड बी द i ब्रैकेट में i के कोफिशिएंट क्या आएंगे? इसको छिपा लो, इसको छिपा लो, दिस ए वाई इंटू बी जेड माइनस दिस इंटू दिस ए जेड इंटू बी वाई प्लस जे कैप. यहाँ ये ध्यान रखना, जब जे कैप में तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, तो जे कैप में ये बचेगा ना इधर की तरफ. यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू नहीं करना, यहाँ से शुरू करना है. ये दोनों बचेंगे, ये लाइन और ये लाइन बची है जे कैप के लिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें भी यहाँ से स्टार्ट किया था. आई के लिए, जे के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो ए जेड इंटू बी एक्स माइनस बी जेड इंटू ए एक्स, फिर के प्लस के क्या हो जाएगा? इसको छुपा लो, ये दोनों बचेंगे, तो फिर ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई. ये आपका आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा. ये तो वेक्टर आ गया, फाइनल वेक्टर विद डायरेक्शन. अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, वेयर आर एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ i, आर वाई इज कोफिशिएंट ऑफ j एंड आर जेड इज कोफिशिएंट ऑफ k. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फुल वेक्टर. फाइन. अब अगर a क्रॉस b दिया हुआ है 0, तो a क्रॉस b हमें पता है a b साइन थीटा होता है. डायरेक्शन की बात बाद में कर लेंगे. तो a
क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो ए बी और साइन थीटा इनके बीच में एंगल कितना होगा? व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो हमें ये फॉर्मूला पता है, ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, कोई एक 0 होगा तभी ये 0 होगा। तो सपोज ये दोनों 0 नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा वुड बी आइदर 0 और 180 डिग्री। दो बोथ आर राइट। एंगल 180 भी हो सकता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इधर भी हो सकता है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी इधर हो सकता है। इन दोनों केस में इसका जो प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट 17 पॉइंट, ए डॉट ए क्रॉस बी, ये क्या होगा बताओ? अब हमें बताए इस ए डॉट, ये सपोज एक्स है, एक्स वेक्टर है, तो ए डॉट एक्स वेक्टर क्या होता है? ए एक्स कॉस थीटा, जो कि स्केलर होता है। और ये क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एक से परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर। तो ए से परपेंडिकुलर है जब ये, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वेक्टर एक्स की क्या आएगी? परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, थीटा इज ए से परपेंडिकुलर है ना। ये जो एन कैप है ये हमेशा बताया है इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की ए से परपेंडिकुलर और बी से परपेंडिकुलर दोनों होती है, दोनों से परपेंडिकुलर होगी। सपोज ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो या तो ये इस तरह से होगा रिजल्टेंट या इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होगी हमेशा। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है हमें पता लग गया कि इन दोनों, इसका रिजल्टेंट ये और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो cos थीटा 90, cos 90 0, सो इट वुड बी इक्वल टू 0। यानी कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज ऑलवेज 0 विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर में कभी कभी पूछ लेते हैं कोसाइन लो। कोसाइन लो पार्ट है मैथ्स का, लेकिन क्योंकि ये ड्राइव वेक्टर से होता है इसलिए यहाँ पे बस याद करने की जरूरत है आपको, डेरिवेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। तो सपोज देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी एंड एंगल बिटवीन देम इज गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। तो उस केस में एक्स अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा क्या होता है? बी स्क्वायर। कॉस अल्फा के बीच उन दो को मिला के बन रहा है बी और सी को मिला के, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थर्ड ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसी कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा किस किस के बीच में बन रहा है? ए और सी के बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस गामा किसके बीच में बन रहा है? ए और बी के बीच में, तो कॉस गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सिर्फ इतना सा है, इसको प्रूफ अगर देखना है तो आप बुक में से देख सकते हो, कहीं भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है। एक साइन लॉ होता है, कोसाइन की तरह से साइन लॉ देखते हैं इस तरह से। साइन लॉ में क्या होता है? सपोज देयर आर 3 वेक्टर ए बी एंड सी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा है, बी के सामने वाला बीटा है, सी के सामने वाला गामा है, तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। बस ये आपको याद रखना है। वेक्टर में जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं, जितने भी तरह के वेक्टर्स हैं, वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए। बाकी न्यूमेरिकल्स पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन आप ट्राई करो सबसे लेके, और मुझे लिंक में डाल दो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, और कोई न्यूमेरिकल आपको क्लियर कराना है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
जो मैंने आज 19 पॉइंट कराए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियरली मैंने अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग यूज डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट और एंगल जब दिया होता है तब क्या करते हैं, एंगल जब दिया हो तो वेक्टर्स के बीच तब किस तरह से मोड निकालते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में हो तब किस तरह से मोड निकालते हैं, और एंगल कैसे निकालते हैं, सारा मैंने आपको समझा दिया।